Hello students, today in this lecture we are going to discuss the inverse Laplace transform. In physics, electronics, control system engineering, the frequency domain refer to the analysis of mathematical functions or signal with respect to the frequency rather than the time. And what the Laplace transform do, it will transform the function of t from time domain to the function of frequency, means frequency domain. That means the Laplace transform, this is the function ft, this is time domain, and this is the function, this is the frequency domain. What Laplace function will transform the function from time domain to frequency domain. This is what, this is Laplace transform of ft. The function is given with the real variable t, and s is a complex variable. We know that s is a complex variable. This is u plus iv, s is equal to u plus iv. If we transform the problem from one domain to another as time domain to the frequency domain, we'll have to come back after the analysis, we'll have to come back to the original domain, that means the frequency domain to the Laplace time domain. So Laplace transform will transform the function from time domain to the frequency domain, that the frequency domain, and then we'll have to come back to the time domain by the inverse of Laplace transform. It is just like the log and antilog, differentiation and integration. So we'll have to come back. So the Laplace transform, inverse of Laplace transform is very important. Let's see what is it. In the previous videos we have learned that the Laplace transform of t is equal to f of s. This means the inverse of f of s. This means we get f of t. F of t is the inverse Laplace transform of fs. Fs is a Laplace transform of ft. For example, the Laplace transform of sin t is equal to 1 upon s square plus 1. So the Laplace inverse of 1 upon s square plus 1, inverse Laplace transform of this function, this is fs, this is equal to sin t. Another example, Laplace transform of sin 2t, this is equal to 2 upon s square plus 4. So the Laplace transform of 2 upon sin square plus 4, inverse Laplace transform is equal to sin 2t. Take another example. Now find the inverse Laplace transform of this function, and we know that the Laplace transform of e to the power at is equal to 1 upon s minus a. We can see that कि ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी s माइनस ए टाइप का ही दिख रहा है, बस s के साथ एक कोफिशिएंट लगा है और ऊपर एक कांस्टेंट है. अगर हम इनको हटा लें तो हम ऐसा इसको रिड्यूस कर सकते हैं. देखिए कैसे. सबसे पहले तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3 अपॉन s माइनस 3 अपॉन 2. उसके बाद इस 3 को हम कॉमन ले सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम Laplace इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 3 upon 2. Here from this formula we can see that the Laplace inverse of this is equal to e to the power at. This is what, this is nothing but 3 into e to the power 3 upon 2t. This is the inverse Laplace transform of this. आइए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं जो हम लोग ने Laplace ट्रांसफॉर्म में करी थी, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग. आइए उनको हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स में कैसे होती हैं. लेट्स सी, अगर किसी फंक्शन में
एस मल्टीप्लाई किया हुआ हो तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जैसे लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस टाइम एफ एस, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एफ टी माइनस प्लस एफ एट ज़ीरो इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम इस पर एक थ्योरम भी है कि अगर f की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो इसका सीधा जो डेरिवेटिव इन्वर्स होगा वो ये हो जाएगा। लेट्स हैव अ थ्योरम कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस जो एफ टी है एंड एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन है, देन द लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस टाइम एफ एस इज इक्वल टू दिस एफ डैश टी। ये थ्योरम है, इसके ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड इफ़ वी जनरलाइज दिस थ्योरम देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टू द पावर एन एफ ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू द पावर ऑफ एस इज इक्वल टू 1, देन वी हैव द फर्स्ट डेरिवेटिव 2, देन द सेकेंड डेरिवेटिव n, वी हैव द nth डेरिवेटिव of the function t with respect to x. This is the generalization of the above theorem. ठीक है, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाएगा मगर हम लोग इस थ्योरम की हेल्प से करेंगे। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट इट इज़ द इन्वर्स ऑफ s इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम यहाँ देखें तो एफ एस हमको दिख रहा है कि एफ एस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे एफ एस हमको मिल गया, हमको डायरेक्टली यहाँ पे एफ एस मिल गया, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इफ़ एफ लाप्लास एफ टी इज़ अ इन्वर्स ऑफ एफ एस, then the Laplace inverse of s time fs is equal to derivative of this ft। that means कि अगर हम यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालें तो हमको ft मिल जाएगा। ये किसका होता है वैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता है ये होता है साइन t का। तो थ्योरम के हिसाब से अगर s की पावर 1 है यहाँ पे तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s टाइम 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, this is equal to d by dt of sin t, this is equal to cos t। और हमको पता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 cos t का ही इन्वर्स होता है। cos t का अगर लाप्लास देखें तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो इसका इन्वर्स ये हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि अगर मल्टीप्लिकेशन बाय 1 अपॉन एस हो, क्या फंक्शन ऑफ s जो है वो s से अगर हम उसको डिवाइड कर दें, इसका मतलब ये भी है डिवीजन बाई s। तो हम जानते हैं कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी, वेयर लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब क्या है, खाली हमको एफ टी निकालना है। अगर इस तरह क्वेश्चन दिया है तो खाली हमको इस एफ एस का इन्वर्स निकाल के एफ टी निकालना है और उसको 0 से टी के बीच में विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट कर देना है। आइए इस पर क्वेश्चन कर ले। एक क्वेश्चन है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस और एस स्क्वायर प्लस 1 का हमको इन्वर्स निकालना है। तो हमको बिल्कुल यही फॉर्म दिख रही है कि 1 अपॉन एस जो है एफ एस के साथ मल्टीप्लाई है। दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे एफ एस अगर हम निकाले तो 1 अपॉन एस को अलग कर दिए तो ये बचा हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। और हमको पता है कि अगर हम एफ एस का इन्वर्स निकालें तो हमको एफ टी मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये किसका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा साइन टी। हमको एफ टी मिल गया, दिस इज़ व्हाट एफ टी इज़ इक्वल टू साइन टी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अब हमको सिर्फ करना ये है कि 0 से टी और इसको साइन टी के रिस्पेक्ट में हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है ना। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे अगर हम u कर दे, वेरिएबल बदल दे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स में अक्सर t भी लिखा होता है। तो अगर हम यहाँ पे साइन u du कर दे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का हमको सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस u और हम इसमें लिमिट लगा दें 0 से t।
ठीक है। तो अब अगर हम लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू माइनस का कॉस टी प्लस कॉस ज़ीरो इज़ 1, दिस इज़ अलग। अच्छा, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी अलग करके कर सकते थे, पार्शियल फ्रैक्शन लगा दे और इसको अलग कर ले, इसको ट्राई करिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हम लोग उस लाप्लास में देख चुके हैं, अब इन्वर्स में भी देख लेते हैं। आइए, तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस होता है, एफ एस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर ए टी एफ टी जो होता है वो एफ ऑफ एस माइनस ए होता है। इसको बिल्कुल उसका उल्टा है। देखिए, हमको अगर एस माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हम एफ एस निकाल ले, ए हटा के एफ एस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी निकाल ले, और ई टू द पावर ए टी से, ए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल इसका उल्टा, इन्वर्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्टिंग फर्स्ट शिफ्टिंग वो प्रॉपर्टीज़ अगर हमको याद है तो हम इनको बहुत ईजिली कर सकते हैं। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमको इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर ले और इसको इस फॉर्म में लेके आए कि क्या ये फॉर्म बन भी रही है। 1/, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3s + 1 का होल स्क्वायर, 9 + 1 और 3 + 6, ठीक। तो दिस इज़ इक्वल टू, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले ले तो 1/9 बाहर आएगा अपने स्क्वायर के साथ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 1/3 का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या लिखा है, 1/9 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल यही फॉर्म बन गई, s माइनस a की फॉर्म, ठीक है। और a हमारा है माइनस का 1/3। तो इस फर्स्ट शिफ्टिंग के हिसाब से अगर हम इस a को हटा ले तो हमारे पास जो बचेगा वो fs बचेगा, तो हम ft निकाल ले। तो इसका मतलब है e टू द पावर at तो आ ही जाएगा, 1/9 e टू द पावर माइनस 1/3t, a इज़ इक्वल टू माइनस का 1/3। सिर्फ हमको ft पुट करना है, ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs। ft इज़ व्हाट, लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs, यही तो ft लिखा हुआ है। तो आइए fs का लाप्लास इन्वर्स निकालें, वेयर fs इज़ इक्वल टू, अगर हम देखें लिखा हुआ है s स्क्वायर, और s स्क्वायर का इन्वर्स अगर हम निकालें, लाप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वायर क्या आएगा बताइए, सॉरी लाप्लास इन्वर्स का 1/s स्क्वायर, ठीक है। तो 1/s स्क्वायर का वो क्या आ जाएगा, हमको पता है t टू द पावर n का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, t टू द पावर n का गामा n + 1/s टू n + 1। अब यहाँ पे क्या लिखा है 1/s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गामा 1/, इसका मतलब t टू द पावर t, दिस इज़ इक्वल टू t। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज़ इक्वल टू 1/9 e टू द पावर माइनस 1/3t इंटू t। क्लियर है ना, ये लिखा है 1/s टू द पावर 1 + 1 और ये लिखा है गामा 1, तो दिस इज़ इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ t टू द पावर n इज़ 1, t टू द पावर 1। तो ये हमारा लाप्लास, तो फर्स्ट शिफ्टिंग का हमने यूज़ कर लिया। आइए सेकंड शिफ्टिंग भी देख लें। तो ये हमारी होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मतलब अगर हमको इसका निकालना है e टू द पावर माइनस as fs का, और हमको fs का इन्वर्स ft पता है, तो बस हमको करना क्या होगा, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो ft - a हो जाएगा, a हमको यहाँ से मिल जाएगा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है e टू द पावर माइनस π/2 इंटू s/s + 3, तो ये वाली फॉर्म लिखी हुई, हमको इसका निकालना है। तो हम इसमें से fs देख ले, fs क्या है, fs इज़ इक्वल टू 1/s + 3। fs मिल गया तो उसका इन्वर्स भी निकाल ले, इन्वर्स ऑफ 1/s + 3, दिस इज़ इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 3t, इसका ये होता है e टू द पावर माइनस 3t, यस। अब ये अगर हमको fs पता चल गया तो ये कहते हैं कि इसका टोटल का ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ t माइनस a, ये लिखा है हमारे पास f ऑफ t, तो f ऑफ
ई टू द पावर माइनस 3, टी को रिप्लेस कर दे टी माइनस ए से, और ए क्या है अगर हम कंपेयर करें, ए इज़ इक्वल टू π/2, ठीक है, ये हो जाएगा टी माइनस π/2, टी माइनस π/2 इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन पाई एंड 0 इफ़ टी इज़ लेस देन पाई। तो ये हमारा सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे मूव करते। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव। अगर कोई डेरिवेटिव है तो उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें किसी फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है ft, तो हम उसके एन डेरिवेटिव का भी निकाल सकते हैं। आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है बहुत, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेविसाइड्स इन्वर्स फार्मूला। देखिए, हेविसाइड्स इन्वर्स फार्मूला क्या है कि fs और gs दो पॉलिनोमियल्स है इन s, और डिग्री ऑफ fs इज़ लेस देन डिग्री ऑफ gs, और α1, α2, αn आर द रूट्स ऑफ gs दिस इक्वेशन। Then the inverse Laplace transform of fs upon gs is equal to f at alpha 1 upon g dash at alpha 1 e to the power alpha 1 t plus f alpha 2 upon g dash alpha at alpha 2 e to the power t alpha 2 and so on। ये नंबर ऑफ़ रूट्स अगर होंगे तो उससे हमको डिसाइड होगा कि कहाँ तक जाएगा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, ये fs दिया हुआ है, fs अपॉन gs की फॉर्म दी हुई है ना। तो वी हैव fs इज़ इक्वल टू 2s² प्लस का 5s माइनस 4 एंड gs इज़ इक्वल टू s³ प्लस का s² माइनस का 2s। और हम ये देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ fs इज़ लेस देन gs, डिग्री इज़ 3 एंड डिग्री इज़ 2, तो डिग्री दोनों की कम ही है। तो दूसरा क्या है, अब हमको रूट्स निकालने हैं, gs के रूट्स निकालने हैं। तो हेविसाइड तभी अप्लाई होगा जब ये कंडीशंस फुलफ़िल होंगी। तो अब आइए इसके रूट्स अगर हम निकालें तो नाउ gs इज़ इक्वल टू 0, gs इज़ इक्वल टू 0, s कॉमन ले लें तो s² प्लस s माइनस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा s प्लस 2 और s माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो s इज़ इक्वल टू 0, 1 और माइनस 2, ये हमारे रूट्स आ गए alpha 1, alpha 2, alpha 3। सो बाय द हेविसाइड फार्मूला वी नो दैट द इन्वर्स ऑफ, हमको क्या करना है कि f की वैल्यू एट 0, g डैश की वैल्यू एट 0, और उसके बाद f की वैल्यू एट 1, g डैश की वैल्यू 1, और f की माइनस 2 पे g डैश की। आइए इसको अलग अलग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। आइए g डैश निकालें, g डैश एट s इज़ इक्वल टू 3s² प्लस का 2s माइनस का 2। अब g डैश की वैल्यू 0 पे अगर हम देखेंगे तो आ जाएगी माइनस का 2, g डैश की वैल्यू 1 के ऊपर अगर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस का 2, दिस इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद है g डैश की वैल्यू अगर हम निकालेंगे माइनस 2 के ऊपर तो क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस का 4 माइनस का 2, 12 माइनस 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 6। ठीक है, अब इसी तरह से हम f की वैल्यूज़ भी निकाल लें। आइए f की वैल्यू अगर हम 0 पे देखेंगे, ये f लिखा है fs, तो 0 पे देखेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 4। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर देखेंगे 1 के ऊपर तो ये लिखा है 1, तो 2 प्लस 5 माइनस 4, दिस इज़ इक्वल टू 3। और अगर हम माइनस 2 के ऊपर देख लें इसकी वैल्यू तो माइनस 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 माइनस का 10 माइनस का 4, तो ये क्या हो गया, दिस इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया 8 माइनस का 14, दिस इज़ इक्वल टू माइनस 6। आइए अब हेविसाइड फार्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या होता है, f की वैल्यू
f की वैल्यू अल्फ़ा 1 पे, अल्फ़ा 1 हमने 0 ले रखा है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू -4 अपॉन जी डैश की वैल्यू अल्फ़ा 1 पे, और जी डैश की वैल्यू हमने ले रखी है ये -2, तो ये हो गया -2 इंटू ई टू द पावर 0t प्लस 1 के ऊपर 3 अपॉन जी डैश की वैल्यू क्या है 1 के ऊपर 3 है अपॉन 3, और ई टू द पावर 1 इंटू टी प्लस माइनस का 6 -2 के ऊपर अपॉन दिस इज़ 6 ई टू द पावर माइनस का 2t, दिस इज़ इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर -2t। तो ये हो गया हमारा इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो हैवी साइड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत यूज़ होता है सोल्यूशन में। तो वी हैव डन कि हमने आज इन्वर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हो जाएगी एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए माय चैनल, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।